ladies, this is lesson 101 of how to spot a performative male. And we will learn this through an example who came into my DMs uninvited to expose himself. Let's go. इसने मुझसे पूछा कि कैसे मैं पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ूं। एक्चुअली मॉरली चीज़ों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, गुड, न्यूट्रल, ईविल। एंड ये क्लियर कट कैटेगरीज नहीं होती, मतलब ग्रेडियंट की तरह होता है। मतलब कहाँ पे गुड स्टार्ट हुआ और न्यूट्रल ख़त्म हुआ समझ नहीं आता प्रॉपरली, मतलब एम्बिगुअस होती हैं चीज़ें थोड़ी। लेकिन फिर भी ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर ले। ईविल मीन्स हार्मिंग अदर्स, न्यूट्रल मीन्स नॉट एक्सप्लॉइटिंग और हार्मिंग अदर्स, एंड गुड मीन्स हेल्पिंग, मतलब नॉट एक्सप्लॉइटिंग प्लस हेल्पिंग। तो इफ़ यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग समवन बट अगर तुम हेल्प भी नहीं कर रहे तो यू आर ए मोरली न्यूट्रल पर्सन। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी फ्री फ्रॉम पेट्रियार्की अनलेस द वर्ल्ड बिकम्स फ्री फ्रॉम पेट्रियार्की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में रहेगी ही। मुझे भी कई बार मैं कुछ चीज़ें कर देती हूँ, किसी को कुछ बोल देती हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि ये तो भाई ये तो मिसोजिनिस्टिक बात कर दी मैंने। बट मेन यही है कि एक बार तुम जो भी कर रहे हो मतलब हमेशा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, सोचते रहो, और इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग देन एक्सेप्ट इट एंड डोंट रिपीट इट। दैट्स ऑल वी कैन डू एज ह्यूमन बींग्स, बिकॉज हम मतलब ऐसे कि हम समंदर में हैं और हमारी नाव में छेद है हमें पता है हमें एक दिन डूब जाना है, कब तक उस पानी को बाहर धकेलोगे। बट ये है कि जब तक मर नहीं जाते तब तक धकेलते रहते हैं, जब तक एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक धकेलते रहते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। वी कैन रेजिस्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंट। एक्चुअली व्हाट डिफाइंस अस इज़ आर रेजिस्टेंस। हमारी रेजिस्टेंस ही हमारी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि बची हुई कोई भी आइडेंटिटी हमारी नहीं होती, वो तो हमें दुनिया ने दी है। जहाँ पे हमने उसे रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे हम शुरू होते हैं और दुनिया खत्म होती है। I partially agree what you are saying, but in my POV, being human and doing humanity is just neutral only, right? Like if I found someone on the road needing help and I can help him or her, then yeah, that's just neutral only. That's just me being neutral only. What so good I have done to that person, or what I don't think I have done any good, but just played my part. But the good starts when you choose between you and other and choose other person. Despite being you can get actually benefited from the thing you will do to yourself, but the other person deserves it more, so you hand it over to the other person. That would be the more good in my POV. Don't you think so? No, I don't think That's so. great analogy, I would say, and I really liked it. And the how you mentioned it, like the person is what they resist. That's when your identity starts. Never thought of it that way, but yeah, good. Thank you. Now the main question. I'm not, but I believe in veganism. Wow. I have been eating non-vegetarian since I was in class 10th. At that time, I didn't have that kind of awareness or that kind of, the उस time पे maturity नहीं to थी, आज realize कहाँ है the तेरी animal awareness? cruelty happening around us. But yeah, I do believe that eating non-veg is not the right thing, especially the industrialization. And I'm also against the vegetarian who just drink milk. And yeah, so it's in my mind, but it's quite difficult for me to switch to veganism. But I want to. I mean, it's a long-term goal to Quite be a difficult. vegan. Oh my But god. yeah, I do support veganism and against industrialization of I do support, animals that are being बट harmed जब by तक the मुझे कुछ two करना ना things. पड़े, मतलब मेरी लाइफ पे जरा सा भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा वो मैं नहीं आने दूंगा। So against the rapidly Topic increasing changed. use of cars, AC, and टॉपिक other चेंज्ड कन्वीनियंटली। stuff we use which directly impacts the environment, and the government is just pushing us to buy it more. Like they bought the 15-year rule, 10-year rule जानवरों for से the diesel गाड़ियों cars पे and आ गया petrol ये cars. इंसान Like अब। what the hell? You should have been focused on increasing your eco-friendly materials and find a way to decompose or to strategically decompose the used cars, and rather than focusing on those, they are just motivating us more to buy more cars, more AC, more of everything which has so much of plastic and all. Also, how would I survive if I will not give into this corrupt system or this fucked up system? Like, I don't want to use car to go everywhere. I don't want to use my laptop for to type and search for everything, because it just takes away something from around us and just doesn't give back. यहाँ पे ना इस But आदमी ने how would I खुद ही survive अपने this आप को world, no? एक्सपोज If कर I just दिया give है। up all व्हाट ही इज all ट्राइंग these टू से things. ना कि देखो ऐसे तो गाड़ियाँ वगैरह इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, क्या गाड़ी चलाना छोड़ दूं मैं? तो जानवर टॉर्चर हो रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैंने देख लिया। ही नोज वेरी वेल, ही मेंशन्ड इट हिमसेल्फ। ही नोज दैट इवन ड्रिंकिंग मिल्क इज रॉन्ग, बट ही इज स्टिल अ नॉन वीगन। बिकॉज भाई मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे हर प्रोडक्ट के पीछे का लेवल देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डली हुई हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसके टेस्ट का क्या, मेरे प्रोटीन का क्या, मुझे तो सर्च करना पड़ेगा ना हाउ टू गेट प्रोटीन फ्रॉम वीगन डाइट, एंड मुझे वो फॉलो करनी पड़ेगी। भाई ओ भाई, दिमाग यूज करना पड़ेगा। मैं तो दिमाग चलाता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चीजें पढ़ता हूँ और जबान चलाता हूँ। एक एनिमल एक्टिविस्ट ने ये बात कही थी कि आज के टाइम पे ना अगर तुम्हें इंसान की असलियत जाननी है तो चेक वेदर ही इज वीगन और नॉट।
ये इकलौता एक ऐसा इशू है जिसमें इंसान को लिप सर्विस के अलावा कुछ और भी करना पड़ता है, उसको अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में कुछ चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। एक मर्द फेमिनिस्ट बन जाएगा, अपने ज़बान से अच्छा ही तो बोलना है उसे, और क्या करना है। जैसे ये अपनी ज़बान से तो वीगनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, बट ही हैज़ नॉट मेड एनी चेंजेस इन हिज लाइफ एंड इसको लगता है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल। नो इट्स नॉट। आई बिकेम वीगन इन 5 मिनट्स। भाई मैं एक वीडियो देखी थी, वाई वीगन नाम से एक वीडियो थी, और उसके अंदर दे रियली शोड कि कैसे छोटे छोटे चिकन्स को पीसा जा रहा है जिंदा, कैसे एक भैंस के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड घुसाई जा रही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम पे, कैसे लेदर बन रहा है। आई सॉ इट and it took me 5 minutes to decide that I will not be part of it anymore. I will not pay for it anymore. ये इंसान देखो ये कैसे बोल रहा है, आई नो आई एम अ हिपोक्रेट इन दिस रिगार्ड। इस टाइप के मर्द के साथ एक दिन भी डेट पे जाने से भी अच्छा मैं 4B मूवमेंट का पार्ट बन जाऊंगी। ये पूरा जानता है, ठीक है, कि एनिमल्स के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके बाद भी ये एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करता है। उसके बाद ये इतने कन्वीनियंटली बोलता है आई नो आई एम अ हिपोक्रेट इन दिस। मैं इस पर कैसे भरोसा कर लूँ, मैं इस इंसान पे कैसे भरोसा कर लूँ कि ये गलत तरीके से टच करके, बिना परमिशन के टच करके ये नहीं बोलेगा कि आई नो आई एम अ हिपोक्रेट इन दिस एंड इट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल टू चेंज माई सेल्फ। वाई वुड आई टेक दिस रिस्क। जो लोग नॉन वीगन है उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो तो एकदम गंवार हैं, बेवकूफ़ हैं, उनकी बात अलग है। बट ये पर्सन सब कुछ जानता है, ये प्योर ईविल है भाई, ये प्योर ईविल है। ऐसे ऐसों के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, चले जाओ तुम्हारे, तुम अपना सपोर्ट लेके। मैं उन लोगों से ना थोड़ी अलर्ट हो जाती हूँ जो ये बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक मोरली न्यूट्रल इंसान हूँ। मैं दूसरों का कुछ बिगाड़ती नहीं हूँ जानबूझ के। हाँ, कुछ मुझसे गलती से ही बिगड़ जाए तो बात अलग है, बट मैं किसी की कोई खास मदद भी नहीं करती हूँ। आई नो आई एम अ मोरली न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। कोई आके बोलता है ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तो मैं समझ जाती हूँ कि शायद वो इतना बुरा है कि उसे मैं अच्छी लग रही हूँ।